Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with 6th chapter of Maths part 2, that is circle. Let us start some important definitions related to the circle. So, what is circle? The set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane is called a circle. Now, some terms related with a circle. First, center. The fixed point is called the center of the circle. In the adjoining figure, point P is the center. Second, radius. The segment joining the center of the circle and a point on the circle is called the radius of the circle. In the adjoining figure, segment PA, segment PC and segment PD are the radius. Third, chord. A line segment joining any two points on the circle is called a chord of the circle. In the adjoining figure, segment BC and segment CD are the chord. Fourth, diameter. A chord passing through the center of the circle is called the diameter of the circle. A diameter is the longest chord of the circle. In the adjoining figure, segment CD is the diameter. Now, circles in a plane. First, congruent circles. Circles having equal radii are called congruent circles. In the adjoining figure, radius OA equal to radius XB. Therefore, circles with center P and Q are congruent circles. Second, congruent circles. Circles having the same center and different radii are called congruent circles. In the adjoining figure, circles having center O and radius OA and OB respectively, radius OA is less than radius OB, are congruent circles. Third, circles intersecting in a point. Coplanar circles having one point in common are called touching circles. In the first figure, circles touching externally having common point A. In the second figure, circles touching internally having common point B. Fourth, circles intersecting in 2 points. Coplanar circles having 2 points in common are called intersecting circles. In the adjoining figure, point A and B are common points. Let us start. Properties of chord. Theorem. The perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisect the chord. हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जब हम सेंटर से सर्कल के chord पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो chord को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स बाइसेक्ट करता है. गिवन in a circle with center O, AB is chord segment OP is the perpendicular of chord AB and APB are collinear points. Diagram. जिसका सेंटर पॉइंट है O और एक chord है AB. जब हम सेंटर पॉइंट O से chord पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन्स OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ AB, तो ये लाइन इस chord AB को बाइसेक्ट करती है. तो यहाँ पे P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब AP इक्वल होगा PB के, ये हमें प्रूफ करना है.
To prove segment AP is congruent to segment BP. Construction: draw segment OA and segment OB. हमें यहाँ पर सेगमेंट OA एंड सेगमेंट OB को ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल मिल चुके हैं। हम जानते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर ऑफ AB, तो यहाँ पर एंगल P पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रूफ: इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए एंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों साइड, क्योंकि OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ PB। देयरफॉर एंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OPB बिकॉज segment OP is a perpendicular of chord AB। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में मीन्स ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में OP साइड कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP बाय कॉमन साइड। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों ही ट्राइंगल्स में OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB बिकॉज एंगल P पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल P के अपोजिट साइड कौन सी, OA एंड OB, तो ये हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगी। और साथ में ये एक ही सर्कल की दो रेडियस हैं, तो ये सेम रेडियस से इक्वल हो सकती हैं, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस OA इज कॉन्ग्रुएंट टू hypotenuse OB by radii of the same circle। अब यहाँ पर हमने एक एंगल को इक्वल बताया है, एक साइड इक्वल बताई है और एक हाइपोटेन्यूस साइड इक्वल बताई है। जब भी एक हाइपोटेन्यूस साइड हम इक्वल बताते हैं और एक एंगल इक्वल बताते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, तो जब एक 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो और हाइपोटेन्यूस साइड इक्वल हो तो वो दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS टेस्ट से। OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। Therefore सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों ही ट्राइंगल्स में इन दोनों साइड्स को तो इक्वल बता दिया था, बस हमारी एक थर्ड साइड इक्वल बताने को बची थी AP एंड PB, तो हमने यहाँ पर सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB लिखा बाय CSCT। हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। Theorem second: the segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord। हमें यहाँ प्रूव करने के लिए कहा हुआ है कि जब हम सर्कल के सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है।
सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट O है और एक कॉर्ड AB है। कॉर्ड AB, तो हमने सेंटर पॉइंट से कॉर्ड के मिड पॉइंट को जॉइन करना है। तो जॉइन करने के बाद हमें बताना है कि ये OP इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ AB। जबकि हमें यहाँ पर बोला है कि P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल होगा PB के, तो हमें प्रूव करना है कि OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AB। गिवन O is the center of the circle, P is the midpoint, P is the midpoint of the chord AB, that is segment AP is congruent to segment PB। हमें यहाँ पर गिवन है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AP इक्वल होगा PB के, ये हमने लिख दिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि OP इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ AB। टू प्रूव segment OP is the perpendicular of chord AB। Construction: draw segment OA and segment OB। प्रूफ: हमने यहाँ पर इन दोनों को जॉइंट किया जिससे हमें दो ट्रायंगल मिले हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में AP इक्वल है PB की, ये तो हमें गिवन है। क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB। इट इज़ गिवन। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं सेगमेंट OA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB बाय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। साथ ही इन दोनों ही ट्रायंगल्स में OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP होगा क्योंकि OP एक कॉमन साइड है। segment OP is congruent to segment OP by common side। Therefore, triangle AOP is congruent to triangle BOP। यहाँ पे देखिए हमने तीनों ही साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल्स S टेस्ट से प्रूफ हो सकते हैं। Therefore, angle OPA is congruent to angle OPB। It is noted by first equation by CACT। जब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल बता सकते हैं बाय CACT से। बट एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज नोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन बाय एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। इन दोनों ही एंगल्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी AB। तो हम लिख सकते हैं एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। Therefore,
अब यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ किया है एंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ पी बी, मतलब ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल ओ पी बी की जगह हम ओ पी ए भी लिख सकते हैं और एंगल ओ पी ए की जगह हम एंगल ओ पी बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल ओ पी ए की जगह मैं लिख रही हूँ एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ पी बी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिखा है एंगल पी इक्वल एंगल बी के, तो हमने यहाँ पे एंगल ओ पी बी लिख दिया एंगल ओ पी ए की जगह पर। देयरफॉर एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हम 2 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर segment OP is a perpendicular of chord AB, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल OPB पे 90 डिग्री का एंगल मिला है, तो एंगल OPA भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि OP इज अ परपेंडिकुलर ऑफ chord AB। हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।